نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسا لو سینے میں اس کے 30 پارے کو، کہ بسا لو سینے میں اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں پھر اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور دیگر حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نصیب مائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شہرا حیران و سستر رہ گئے، جس کا آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالوں کے اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سامیانے گڑ گئے۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے سارے دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے سارے دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جہنی قوت کو ضلع بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال آتا ہے کہ جن کے بارے میں شہنشاہ قدفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا ورتقی، اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چلتا جا، اور تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت پر پہنچے۔ لہٰذا یہ قرآن
दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकता। और क्यों ना होगा, जबकि इसके उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, और जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात पर नाजिल हुआ वो 1000 रातों से बेहतर। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़लुल कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़लिल्लाहि अला खैरि खल्क़ि, कि अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसे ही फजीलत है जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू को तमाम मखलूक पर अल्लाह का प्यारा और खुदा का दुलारा नबी साथ फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उसने अमल किया उसके वालिदैन को क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशनदार ताज पहनाए जाएंगे। गौर करने का मकाम है कि जिसके वालिदैन को इस तरह कद्र से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का आलम क्या होगा। मोहतरम हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान पाक अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उन लोगों को हाफिज़ कुरान पाक की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम अज़ीम बरकत और शहादत है जो रूह खुदाबंदी, मादिन हयात और सरचस्पाए जिंदगी है। वह अरब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर समझती, कोई उनको ऊँट की मैंगों में खेलने वाला समझता तो कोई ने जाहिल अरब कहता तो कोई ने जाहिल मक्का का खिताब देता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जाहिल अरब था उनका नाम सहाबा इकराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हु का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिल अरब था उनका नाम सहाबा इकराम हो गया। मुसलमानों, समझो जाहिल अरब था। दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान व कमान और जिंदगी आई। कुरान आया तो अदल सदद का पैगाम आया। कुरान आया तो मजहब इस्लाम फिरा। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हो गए। कुरान आया तो कैसर व किस्रा के गुरूर खाक में मिला। कुरान आया तो बातिल के लहते झंडे टूट पड़े। कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला। कुरान आया तो इंसानों को पुजारी खुदा के पुरस्कार बने। कुरान आया तो तौहीद मिले, ईमान मिला। कुरान आया तो गुरस्ताओं को बार हुस्न अता हुए। कुरान आया तो जलालत व गुमराही के दलदल में भटके हुए इंसानियत को दर्द व गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मगर अफसोस अफसोस, हमने कुरान की दामन को तर्क कर दिया, उसकी पाकीज़ा कलमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत व रफ़ात का ताज था जलालत व रुसवाई की गार में जा गिरी। उस कौम का मैं भी जिसके आगे बढ़कर इस्तेमाल करते थे आज नाकामी उसका मकसद बन गई। वह मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज में अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने भी मैदान खाली कर दिया था। आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वह कौम जिस पर कभी तारीख नाज़िल थी, वह कौम जिसकी माजी रोशन ताबनाक थी, हाल व मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो और कुरान करीम से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। जानसार साहब इकराम के कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई ऐसी किताब ना थी जिसको लेकर आगे बढ़े और कामयाबी इसकी कदम चूमती चली गई। वह कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में मगर दूसरे को में हम पर सवार है। जान हमारे महफूज नहीं, माल हमारे महफूज नहीं, इज्जत व आबरू खिलवाड़ है, ना हमारी मसाजिदें महफूज है, ना हमारी मकातिबें महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमान का एक दौर था कि मुसलमान का मुकाबला हमान बिन वलीद से होता है। उस दौरान दुश्मन खुदा के बस ताकत व कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर लेकर जर्रार है। मुसलमानों का फौज 10,000 है। इस्लामिया फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मनों के पास तादाद कितनी है, उसके पास फौज कितना है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा जाता है आप 300 आदमी लेकर जाएं और पता लगाएं कि दुश्मनों की तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। मशवरा सामान क्या है। साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत तो देखिए, फरमाते हैं कि 300 की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबले के लिए हम 30 आदमी काफी है। सहाबा अर्ज करते हैं कि ये दुनिया दारुल अस्बाब है,
30 आदमी कुछ न होता, कम से कम 60 आदमी ले जाओ। चुनांचे 30 आदमी का और इजाफा कर दिया गया और इस्लामी मुजाहिद, इस्लामी फौज के मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील आगे फासले पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है और उसकी तादाद 60,000 है। वहाँ दुश्मन के लश्कर है और उसकी तादाद 60,000 है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान हरारत जोश में आया, फरमाया कि उनसे फरमाया के सामने दुश्मन का लश्कर है, मेरा राह है कि इधर मुंतज़िर साहबा इकराम को इत्तला की जरूरत नहीं, उनसे मुकाबले के लिए हम काफी है। सब ने एक ज़बान होकर कहा हम तो शौक के शहादत है। जब शहादत सामने है तो दुश्मनों की कसरत और तादाद से परवाह किया, दुश्मनों की कसरत उसके तादाद से परवाह किया। इस्लामी मुजाहिद की इस ललकार को सुनकर हमान बिन वलीद जोश में आता है और कहता है कि पकड़ लो उन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है, हज़रत खालिद बिन 60,000 का हमला होता है और सहाबा इकराम उसमें घुस जाते हैं। रावी कहता है कि रसूल खुदा के वो जांबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आए, फिर नहीं पता वो कहाँ है। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना बलाग। इस सार के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा ले तो बनी बात, कि हर लफ्ज़ को सीने में बसा ले तो बनी बात, ताकों पे सजाने का ये कुरान नहीं है।